Hello everyone, welcome to our YouTube channel Linguasols, and today we have brought before you Beehive Lesson 3 The Little Girl, written by Catherine Mansfield. We have tried to make it as easy as possible for you. I hope you will enjoy the session, you will like, subscribe and share our channel Linguasols. So let us begin with the chapter The Little Girl. Friends, as we grow, we gain maturity. When we were young, there were many misconceptions in our mind. We were not able to judge people well. At times, when we were scolded by our parents, we used to think that they are harsh, they are cruel, they are not like other parents, those who love their kids a lot, they play with them, they laugh with them. But when we grow, we start understanding there's a change in our perception. We come to know that what they did at that time, it was right. As they loved us and they wanted us to remain on the right track. As all the fingers in the hands, they are not equal. Similarly, the family conditions of all the families, they are not the same. These things, sometimes young kids, they are not able to realize, but the realization dawns upon them when they ग्रो अप. कई बार जब तक हम छोटे होते हैं, हम पारिवारिक परिस्थितियां समझते नहीं हैं और हम ये मान बैठते हैं कि हमारे मम्मी पापा औरों के जैसे लविंग और केयरिंग नहीं है, जब देखो डांटते डपटते रहते हैं. लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो कई बार हमें ये चीज़ समझ में आने लगती है कि अगर बचपन में उस समय उन्होंने हमें डांटा मारा या टोका नहीं होता तो शायद आज हम इतने काबिल ना बन पाए होते. शायद वो सही थे, हम ही बच्चे थे जो उन परिस्थितियों को समझ नहीं सकते थे और किस प्रकार हम कई बार अनजाने में उनको तंग भी कर देते थे, उनका नुकसान भी कर देते थे. उनके लिए सहारा बनने के बजाय उनके लिए परेशानी का कारण बन जाते थे. ये स्टोरी द लिटिल गर्ल is also based on the same concept. The story is about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding, will probably find an echo in every home. ये लगभग हर घर की कहानी है. बच्चे जब बड़े होते हैं तब वही फीलिंग्स अपने माँ बाप के प्रति चेंज होने लगती हैं, स्पेशली फादर who appears to be very strict and rude. बाद में हमें एहसास होना शुरू होता है कि नहीं, वो सही थे और उस समय उनके उस व्यवहार के पीछे का कारण क्या रहा होगा. तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द टेक्स्ट. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. उस छोटी बच्ची केजिया के लिए उसके पापा एक डरावने से व्यक्ति थे, जिनसे डर लगता है और जिनको वो अवॉइड करना चाहती है. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. हर सुबह ऑफिस जाने से पहले वो अपनी बेटी केजिया के रूम में जाते हैं और कैजुअली उसको किस भी करते हैं. टू विश शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, और वो भी गुड बाय फादर कह के उनको कैजुअली रिस्पॉन्ड करती है. बट देयर इज नो फीलिंग, देयर इज नो अफेक्शन. उसकी उस गुड बाय में कोई भावनाएं नहीं है. एंड ओ, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. बल्कि वो तो खुश हो जाती है कि वो ऑफिस जा रहे हैं और उनकी गाड़ी जैसे जैसे घर से दूर जाती है और आवाज़ धीमी और धीमी होती जाती है, उसकी खुशी बढ़ती जाती है, उसकी राहत रिलीफ बढ़ जाती है कि जान छूटी,
पापा ऑफिस गए, अब कम से कम डांट नहीं पड़ेगी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को जब पापा ऑफिस से वापस आते हैं, नीचे हॉल में खड़े होके मम्मा को या दूसरे फैमिली मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, Bring me my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. This clearly tells कि father has returned home. He is tired. He left for his office early in the morning. He did not even read the newspaper. But Kezia, being young, was not in a position to understand the situation of her father, that how hard he has to work in order to earn the living for the family, their daily bread. वह ये छोटी बच्ची नहीं समझ सकती कि पिता को कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है परिवार के लिए, धन कमाने के लिए, जिससे उनको सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। तो बस यही कुछ कारण होते हैं जिस वजह से शायद जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमें लगता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनकी डांट कई बार हमें बुरी लगती है अपने माँ बाप की, स्पेशली फादर की। लेकिन जब हम बड़े होने लगते हैं तब इन्हीं चीज़ों का हमको रियलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ आवाज लगाती, केजिया बेटा इधर आओ। इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। नीचे आओ बेटा, नीचे आके पापा के जूते ले जाओ, उनको सही जगह पे रखो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. But by that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. केजिया सीढ़ियों से धीरे धीरे आती है और हॉल तक आते आते तो उसकी स्पीड और भी कम हो जाती है, because she is afraid of her father. She wanted to avoid him. जब तक पापा चश्मा पहन चुके हैं और चश्मे में से ही जब देखते हैं तो आंखें थोड़ी और टेरिबल सी लगती हैं। वो पूछते हैं, वेल केजिया हरी अप, थोड़ा जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। केजिया थोड़ा स्टामर करते हुए बोलती है, पता नहीं पापा कि मैंने आज अच्छे से बिहेव किया या नहीं। While Kezia used to talk to other people, she was absolutely normal. But when it comes for Kezia to talk to her father, she used to start stammering or stuttering. Why? Because of fear. She was afraid of her father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. पापा बिल्कुल केजिया की आवाज में ही थोड़ा सा स्टटर करके हकलाते हुए बोलते हैं और बोलते हैं, अगर तुम इस तरीके से बोलोगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। अब केजिया उतनी छोटी बच्ची नहीं है जैसे तुतला के या हकला के बोलते हैं, बाकियों के सामने वो ठीक से बोलती है, बट इट इज ओनली इन फ्रंट ऑफ हर फादर शी यूज्ड टू स्टैमर बिकॉज शी वाज सो स्केयर्ड ऑफ हिम। But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. क्योंकि उनके सामने वो किसी तरह कोशिश करके ठीक से बोलने की कोशिश करती भी है, पर शब्द मुंह से निकलते नहीं है क्योंकि अंदर से वो उनसे बहुत डरती है। What's the matter? What are you looking so wretched about? ऐसी क्यों शक्ल बना रखी है? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. बल्कि पापा मम्मी तक को कह देते हैं कि बेटी को जरा ठीक से इसको मैनरिज्म सिखाओ, देखो ये इसकी शक्ल ऐसी बना के रखती है कि जैसे अभी ही सुसाइड करने वाली हो। शी लुक्स सो टेरिबल। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। लो ये चाय का कप ध्यान से लेके जाना, तोड़ना मत। द कॉन्स्टेंट रिस्ट्रिक्शंस, द कॉन्स्टेंट इंस्ट्रक्शंस, द कॉन्स्टेंट scoldings, all these things, they sometimes make a child quite nervous. Otherwise the kids, they are very confident, but sometimes before such person they lose their confidence. He was so big, his hands and his neck
especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. केजिया के पापा एक वेल बिल्ट इंसान है, लंबे चौड़े, और केजिया अभी बहुत छोटी बच्ची है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो वही माँ बाप हमको अपने से साइज में बहुत बड़े लगते हैं। उनका हाथ काफ़ी बड़ा लगता है, बच्चे के हाथ छोटे से होते हैं। लेकिन जब हम टॉलर हो जाते हैं, हम ग्रोन अप बन जाते हैं, तब हम उनके बराबर हो गए या उनसे भी लंबे हो गए, तब वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये सब चीज़ें कुछ एक टेरेबल सी फिगर क्रिएट करती हैं, लाइक दैट ऑफ अ जायंट इन द माइंड ऑफ Kezia. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Sunday afternoon को केजिया की दादी उसको बोलती हैं, जाओ बेटा नीचे जाओ, पापा मम्मी के साथ बैठो, थोड़ी देर बातें करो. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. मम्मा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती हैं और पापा सोफे के ऊपर लेट के हैंकी अपने चेहरे के ऊपर रख के कि लाइट ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, वो रिलैक्स कर रहे होते हैं. दिस टेल्स दैट थ्रू आउट द वीक ही हैज टू वर्क सो हार्ड दैट इट इज ओनली संडे दैट ही गेट्स सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन एंड ही वांट्स टू रिचार्ज हिज बॉडी सो दैट ही कैन वंस अगेन वर्क हार्ड फॉर द होल वीक, बिकॉज he has to earn the comforts for his family. His feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो पापा सो रहे होते थे और मम्मा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी और दादी बोलती थी, जाओ जाके दोनों से बातें करो. The thing is, sometimes the conditions of the family members, mother, father, it is so different that kids, they have ample of time. And at times grandparents, they also want us to go and talk, but their condition is entirely different. There is something which is going in their mind. They might be worried and puzzled about anything. हो सकता है वो किसी चीज को लेके परेशान, विचलित, व्याकुल हो. बच्चों को ये चीज नहीं पता होती. उनके दिमाग में तो हमेशा अपने सुख सुविधा, खाना पीना, खेल कूद, यही सारी चीजें चलती रहती हैं. कई बार यही चीजें पेरेंट्स को इरिटेट कर देती हैं और यही डांट या मार का कारण भी बन जाती है. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time. केजिया वहीं स्टूल पे बैठ के वेट करती है कि पापा सो के उठें तो बातें करूं, क्योंकि दादी ने तो उनको कंपल्सरली भेज दिया, जाओ जाके मम्मी पापा से बातें करो. When father woke and stretched and asked the time, पापा उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, केजिया से टाइम पूछते हैं. Then looked at her, don't stare so Kezia, you look like a little brown owl. ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो, बिल्कुल लिटिल ब्राउन आउल की तरह पागल सी दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, एक दिन केजिया घर के अंदर ही थी, उसको सर्दी जुकाम हो गया था, कोल्ड. Her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she could make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. केजिया की दादी ने ही उसको बताया कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, उनके लिए एक पिन कुशन ही बना लो गिफ्ट के तौर पे. और येलो सिल्क का कपड़ा उन्होंने उसको दिया और पिन कुशन बनाने के लिए कहा कि पहले से ही एज ए सरप्राइज गिफ्ट बना के रखो. नाउ व्हाट इज अ पिन कुशन? पिन कुशन होता क्या है? जैसे कोई भी नीडल्स वगैरह हैं, इनको हम किसी एक क्लॉथ का एक स्टफ्ड बैग बना लेते हैं छोटा सा, और जितनी भी नीडल्स होती हैं उसको हम उसमें पिन करके रखते हैं ताकि वो इधर उधर स्प्रेड ना हो, किसी को चुभ ना जाए. आजकल अब यही एक प्लास्टिक का कंटेनर आने लगा है जिसमें मैग्नेट लगी होती है, एंड ऑल पिन्स हम उसके अंदर रख देते हैं तो वो उसमें स्टिक कर जाती हैं मैग्नेट की वजह से और इधर उधर फैलने से बच जाती हैं. सच a cloth bag is known as pin cushion.
laboriously with a double cotton. The girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. बड़ी मेहनत से उस बच्ची ने कॉटन के कपड़े को डबल करके 3 साइड्स तो स्टिच कर लिए, लेकिन अब समस्या यह थी कि उसके अंदर भरें क्या, क्योंकि ऊपर से उसको कवर करके सील करना होगा ताकि पिन कुशन कंप्लीट हो सके. That was the question. The grandmother was out in the garden. दादी बाहर थी. And she wandered into mother's bedroom. मम्मी के बेडरूम में वो गई कि कुछ पुराना स्क्रैप या ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसको उसके अंदर भरा जा सके. On the bed table she discovered many sheets of fine paper. उसको पलंग के पास कुछ ऐसे कागज मिल गए जिसको लगा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसके अंदर भरे जा सकते हैं. Gathered them up, tore them into tiny pieces. उसने उन कागजों को उठाया, छोटे छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया. And stuffed her case, अपने पिन कुशन का जो कवर बनाया है उसके अंदर उनको भर दिया. Then sewed up the fourth side, और उसने चौथा साइड सिल के उसे कंप्लीट कर दिया. She must be very happy कि मैंने पापा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है. That night there was a hue and cry in the house. और उस रात को जब पापा लौटे तो घर में चीख पुकार मच गई. Hue and cry means शोर शराबा, चीख पुकार. पापा गुस्से में आग बबूला हो रहे थे. Father's great speech for the port authority had been lost. उन्होंने पोर्ट अथॉरिटी के लिए कोई स्पीच लिखी थी और वो उन्हें मिल नहीं रही. Rooms were searched, servants were questioned. नौकरों से पूछा गया, पूरा घर छान मारा गया, पर वो आखिर पेपर नहीं मिले. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? बेटा, कहीं हमारे कमरे में तुमने टेबल पे रखे हुए बेड के पास में कोई पेपर्स तो नहीं देखे? अब यहां से केजिया की मुसीबत शुरू. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. हाँ, वहां कुछ पेपर रखे थे मम्मी, लेकिन मैंने तो उनको फाड़ कर छोटे छोटे पीसेस करके अपने सरप्राइज के अंदर भर दिया. What? Screamed mother. मम्मी जोर से चिल्लाई, क्या? ये क्या कर डाला तुमने? Come right down to the dining room this instant. इसी समय नीचे डाइनिंग रूम में आओ. और मम्मी ने उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया क्योंकि पापा नीचे बहुत गुस्से में थे. उनकी एक इम्पॉर्टेंट स्पीच खो गई और केजिया ने उसके छोटे छोटे टुकड़े फाड़कर उसको फालतू कागज समझा, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके अपने पिन कुशन के अंदर भर दिया. कई बार अनजाने में बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि बड़ों के लिए वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट या कितनी काम की हो सकती है, और बस कई बार ऐसी ही चीज़ गुस्से का कारण और पनिशमेंट का कारण बन जाती है. तो देखते हैं केजिया के साथ में आगे क्या होता है. And she was dragged down to where father was pacing to and fro. उसकी मम्मी हाथ पकड़ के उसे खींचती हुई नीचे ले गई और पापा गुस्से में वहां पेसिंग टू एंड फ्रो, तेज कदमों में इधर उधर टहल रहे हैं. जाना आना, टू एंड फ्रो, जैसे कि पेंडुलम का ऑसिलेशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन, जाना और आना, इधर से उधर, उधर से इधर तक. हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं, फोल्ड किए हुए हैंड्स. ये बेचैनी को रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. बस पापा वहीं रुक गए और उन्होंने केजिया को घूर के देखा जब मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई. Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? No, she whispered. धीमी सी आवाज में फिर से डरते हुए, अटकते हुए उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं किया. Mother, go up to her room and face down that damn thing. जाओ जरा इसके कमरे में जाके वो जो भी इसने चीज बनाई है जरा लेकर तो आओ. See that the child is put to bed this instant. और इसको तुरंत सुला दिया जाए इसी समय, क्योंकि इस समय वो गुस्से में बहुत पागल हो रहे हैं. Crying too much to explain. बहुत रो रही थी, वो क्या समझाए. She lay in the shadowed room watching the evening light
make a sad little pattern on the floor. बस लाइट की जो परछाई जमीन पे पड़ रही है, शैडो बन रही है, वो उसके लिए एक सैड पैटर्न बना रही है, उसका मूड अपसेट है. Then father came into the room with a ruler in his hands. पापा एक स्केल हाथ में लेके आए कमरे में. I'm going to beat you for this. Kezia, you will get punishment for this. He said, oh no, no, she screamed. वो जोर से चिल्लाई, नहीं पापा नहीं, मारना मत. Hiding under the bedclothes, अपने ब्लैंकेट और चादर के नीचे छुपने की उसने कोशिश करी. He pulled them aside. Sit up. पापा ने उस सबको हटा दिया और बोला जरा उठ के बैठो. He ordered. It was strict instruction. And hold out your hands. हाथ दिखाओ, हाथ कहाँ है तुम्हारा, हाथ सामने करो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. आज तुमको ये बात सिखानी होगी कि जो चीज तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो दूसरे की है, उसे तुम्हें छूने का कोई हक नहीं. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. लेकिन पापा वो तो मैंने आपके बर्थडे गिफ्ट के लिए बनाया था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स. उसके नन्हे नन्हे छोटे छोटे हाथों पे एक स्केल पड़ा और केजिया चीख के रोने लगी. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. इधर कई घंटे हो गए रोते रोते, वो परेशान थी, डरी हुई थी. दादी ने उसको शॉल उड़ाई, अपने साथ चिपकाया और उसको सुलाया, तब जाके कहीं वो सोई. द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी. वो अपनी दादी के सॉफ्ट नरम बॉडी के साथ में चिपकी हुई थी. छोटी बच्ची है. ग्रैंड पेरेंट्स के लिए हमेशा ग्रैंड चिल्ड्रन डियर होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को अनुशासन सिखाना भी ज़रूरी होता है अपने बच्चों को. अगर नहीं सिखाएंगे, आज स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, तो ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार या जो पैम्परिंग होती है वो भी बच्चे को गलत रास्ते पर ले जाती है. What did God make fathers for? She sobbed. आखिर भगवान ने पिताजी को बनाया ही क्यों? ये पापा लोग इतने स्ट्रिक्ट होते ही क्यों हैं? Here is a clean hanky darling. लो ये साफ हैंकी ले लो. Blow your nose. पहले अपनी नाक साफ करो. Go to sleep. और अब सो जाओ. Pet, my dear. You'll forget all about in the morning. सुबह तक तुम सब भूल जाओगी. चलो अब शांत हो, सो जाओ. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने पापा को बताने की कोशिश भी करी थी कि मैंने बर्थडे गिफ्ट के लिए बनाया, लेकिन वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे. But the child never forgot. लेकिन ये घटना केजिया भूल नहीं सकी. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. इसके बाद जब जैसे ही वो अपने पापा को देखती थी, वो अपने दोनों हाथ पीछे छुपा लेती थी कि पापा फिर से कहीं से स्केल लेके पिटाई ना कर दे, मारे नहीं, और उसका गाल, उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता था. वो डर जाती थी. बस we never know. The child's mind is like a wet clay and which thing is going to leave a permanent impression on it. हमें नहीं मालूम. बच्चे का दिमाग तो एक गीली मिट्टी की तरह होता है. उसके ऊपर किस घटना की छाप हमेशा के लिए छप जाएगी, इंडेलिबल इम्प्रेशन छोड़ जाएगी, अपन को नहीं मालूम. और शायद केजिया को ये चीज़ समझ में ही नहीं आई कि उसने अनजाने में पापा का कितना बड़ा नुकसान कर दिया. और बस यहीं से केजिया के मन में पापा के प्रति एक डर, नापसंदगी पैदा हो गई. An aversion for her own father as a very strict and a cruel man. The McDonalds lived next door. केजिया लोगों के पड़ोसी मैकडोनल्ड्स फैमिली है. They had 5 children. उनके 5 बच्चे हैं. Looking through a gap in the fence, जो घर के बीच में जो बाड़ लगी हुई है, वुडन बाउंड्री जो है, उसके बीच में गैप में से वो कई बार उनके घर में देखती है. Little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, now Mao on his shoulders, 2 little girls hanging up onto his coat pocket, ran round and flower of the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the hose on him.
and he tried to catch them laughing all the time. केसिया देखती है कि मिस्टर मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड्स अपने उन 5 बच्चों के साथ में बहुत मजे से खेलते हैं। सबसे छोटे वाले को तो उन्होंने अपने कंधों के ऊपर बिठा के रखा है, लड़कियां उनका कोट पकड़ के गोल गोल घूम रही हैं और एक बार तो बच्चों ने पानी का पाइप खोल के उनकी तरफ भी कर दिया, वो गीले भी हो गए और डांटने के बजाय मिस्टर मैकडोनल्ड ने तो बल्कि उनको हंस के दौड़ के भाग के पकड़ने की कोशिश करी। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। और बस यहीं से केजिया के मन में एक बात बैठ गई कि सबके पापा खराब भी नहीं होते, किसी किसी के पापा अच्छे होते हैं, मेरे ही पापा खराब हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल। एक दिन अचानक केजिया की मम्मी बीमार हो गई। शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल। केजिया की मम्मी और उसकी दादी तो हॉस्पिटल गए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। इनकी जो कुक एलिस है उसके साथ उसे घर पे छोड़ गए। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन तो बिल्कुल ठीक बीत गया। दिन में तो कोई समस्या नहीं थी क्योंकि एलिस के साथ वो फ्रेंडली है, मिक्स्ड अप है, तो आराम से घर पे रुक गई। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस रात को उसको सुलाने लगी तब केजिया डर गई। वॉट विल आई डू इफ आई हैड अ नाइटमेयर। नाइटमेयर एक डरावना सपना। केजिया को अक्सर डरावने सपने आते हैं, कई बच्चों को भी आते हैं। तो शी आस्क आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी। मुझे जब भी डरावना सपना आता है तो ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। दादी मुझे अपने बेड पे ले जाके अपने साथ सुला लेती हैं। आई कांट स्टे इन द डार्क क्योंकि तब मुझे डर लगता है, फिर मैं अकेले नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। मुझे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। बेटा तुम बस चुप करके सो जाओ, जरूरी नहीं कि तुम्हें डरावना सपना आए, कुछ नहीं होगा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। उसके सॉक्स उतार दिए ताकि कंफर्टेबली वो सो सके। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा। कहीं ऐसा नहीं करना कि तुम रात को चिल्लाने लगो और पापा को जगा दो। उनको दिन भर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो रात को उनको प्रॉपर रेस्ट की भी जरूरत होती है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। वही डरावना सपना फिर आया केजिया को। द बुचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। उसके सपने में अक्सर एक कसाई आता है चाकू लेके, एक रस्सी भी लिए हुए है। हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। और उस बुचर के चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान है, भयानक सी, डरावनी सी। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke, shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. क्योंकि ग्रैंडमा तो है नहीं और केजिया हमेशा की तरह दादी दादी चिल्ला के उठ गई। और जब उठी तो देखा कि कैंडल लेके पापा बगल में बिल्कुल खड़े हुए हैं। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, "What is the matter?" he said. क्या हुआ बेटी? "Oh, a butcher, a knife, I want granny." वो बुचर आया था, वो चाकू लेके आया था। "I want granny." मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle. फादर ने कैंडल बुझा दी। Bent down and caught up the child in his arms. नीचे झुक के अपने बेटी को अपनी गोदी में उठाया। Carrying her along the passage to the bedroom. और अपने बेडरूम में उनको ले गए। A newspaper was on the bed. वहीं बेड पे न्यूज़पेपर पड़ा था। उन्होंने न्यूज़पेपर को साइड में किया। He put away the paper, then carefully tucked up the child. और बच्चे को वहां पे लिटाया और कंबल वगैरह उड़ा के अच्छे से चारों तरफ से कवर कर दिया। He lay down beside her और खुद भी उसके बगल में बैठ गए। Half asleep still. पापा अभी कच्ची पक्की नींद में ही है। केजिया को भी नींद नहीं आ रही। Still with the butcher's smile all about her it seemed. केजिया के मन में तो अभी भी वही चीज चल रही है कि बुचर चाकू लेके रस्सी लेके मेरे पीछे आ रहा है। She crept
क्लोज टू हिम, और जितना उसे डर लग रहा है वो उतना और पापा से चिपक चिपक के सो रही है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, और अपना जो सिर है उनके हाथों के नीचे रख लेती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनकी शर्ट भी टाइटली पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर अंधेरे से अब उसे डर नहीं लगा। शी ले स्टिल, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म। चिंता नहीं करो बेटी, एक काम करो, अपने इन पैरों को मेरे से रब करो, तुम्हारे पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं, सेड फादर। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. Tired out, he slept before the little girl. पापा इतने थके हुए थे कि इससे पहले कि केजिया सोए, पापा खुद ही सो गए। A funny feeling came over her. बस यहीं से केजिया का मूड चेंज हो गया, उसको थोड़ा अच्छा सा लगा। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। बेचारे पापा, बताओ, मुझे सुला रहे थे, खुद ही पहले सो गए। नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब जैसे पहले वो बिग जायंट जैसे, दानव जैसे दिखते थे, अब उसकी फीलिंग चेंज हो गई। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, यही तो सबकी देखभाल करते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कौन है? कोई नहीं। He was harder than grandmother. दादी जब अपने साथ चिपका के सुलाती हैं उनकी बॉडी सॉफ्ट नरम है, लेकिन पापा उनके जैसे नहीं, पापा तो हार्ड हैं। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस भी उसको अब अच्छी लगती है। वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी केयरिंग। इन एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। पापा को रोज बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शायद मिस्टर मैकडोनल्ड की जैसी इनकी किस्मत नहीं है। वो लकी हैं, उनके पास हो सकता है अधिक पैसा हो, उनका काम ऐसा हो जिसमें उनके लिए उनके वर्कर्स वर्क करते हों। हर आदमी, हर परिवार, सब लोगों की परिस्थिति अलग होती है। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, और मैं ही तो गलत थी। मैंने उनके सारे ब्यूटीफुल राइटिंग वाले वो जो पेपर, जो स्पीच लिखी थी, उसको फाड़ दिया। शी स्टूड सडनली, एकदम से वो हिल जाती है। एंड साइड, व्हाट्स द मैटर, आस्कर फादर, पापा की नींद खुल जाती, पूछते क्या हुआ बेटा, क्या और कोई डरावना सपना आया? ओ, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। मेरा सिर आपके हार्ट पे है और मुझे धड़कन सुनाई दे रही, पापा आपका दिल कितना बड़ा है। ये कौन से दिल की बात हो रही है? क्या रियल बायोलॉजिकल हार्ट की बात हो रही है, या जो एक पापा के मन में जो प्यार होता है बच्चों के लिए, वो मदर और ग्रैंड मदर से थोड़ा डिफरेंट होता है। वो आपको अपना अफेक्शन शो करते हैं, और फादर जनरली स्ट्रिक्ट और रूट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक सही रास्ते पे बने रहें। तो बच्चों को लगता है कि मम्मी ज़्यादा डियर हैं, दादी ज़्यादा डियर हैं, पापा स्ट्रिक्ट हैं, पापा खराब हैं, पर ऐसा होता नहीं है। वो भी उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहते हैं कि जीवन में एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। तो किस प्रकार जब हम बड़े होने लगते हैं, या कुछ चीज़ें हमको पहले नहीं समझ में आती, बाद में समझ में जब आती हैं, तो हमारा नज़रिया उन चीज़ों या उन व्यक्ति के लिए बदल जाता है, जैसा केजिया के भी साथ में हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉयड लिसनिंग टू द स्टोरी। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट्स रह जाते हैं, सो यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज in the comment box, and don't forget to like, subscribe and share our channel LinguaSolves with all your near and dear ones. It is not only about your syllabus, it has got all the content that is useful for everyone. So thank you everyone for joining.